Assalamu alaikum. My name is Hifsa Jiddu. My name is Parsa Zulfikar. I am Abdullah Aftab. My name is Abdul Sabur. میرا نام ٹیپو سلطان ہے اور میں 3rd ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ ایوب میڈیکل کالج. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. اور آج کا ہمارا ٹاپک از ریگارڈنگ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایئر آف MBBS ایز دے سے سیکنڈ ایئر MBBS. تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر MBBS کی گائیڈنس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے لیے پڑھا کیسے جائے اور کیا کیا بکس یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کون کون سی ویڈیو لیکچرز یوز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں ہم KMU کے ٹاپر سے بھی بات کریں گے. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے کون سا میتھڈ یوز کیا تھا، انہوں نے کون سی بکس کو فالو کیا تھا اور کس طرح سے ان لوگوں نے مینیج کیا سیکنڈ ایئر MBBS کو پاس کرنا. تو بغیر ٹائم ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ایئر MBBS کے بارے میں ہم سب یہی سنتے آتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل ایئر ہے 5 سالوں میں. تو فرسٹ ایئر کا تو یہ سین ہے. فرسٹ ایئر ہمیں اس لیے مشکل لگتی ہے کہ وی ٹیک 180 ڈگری ٹرن فرام FSC ٹو MBBS. تو ہمارے لیے بکس نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے ٹوٹلی کریکولم نہیں ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹس نہیں ہوتے ہیں، ایک الگ ہی دنیا میں آ جاتے ہیں ہم. تو ہمیں آدھے سال تو سمجھ نہیں پڑی ہوتی کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس سینئر کی بات کو سننا ہے، کس کی نہیں سننا. ہر ایک بندے کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، اپنی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، تو کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے ہمیں MBBS کی سمجھ آتی ہے تو وہ آلموسٹ ہماری پریپس ہائی ہوتی ہیں. دا ریئل چیلنج از سیکنڈ ایئر MBBS، کیونکہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا جو کورس ہے لائک اٹس لائک وی ہیو دا سیم بکس، سیم ڈپارٹمنٹس، ایوری تھنگ سیم. فرسٹ ایئر میں ہم لوگ اس ساری بک کا 25% پڑھتے ہیں، تو سیکنڈ ایئر میں ہم 75% پڑھے ہوتے ہیں، اسپیشلی گائیڈن. تو لوگ اس وجہ سے گھبرا جاتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر MBBS تو بہت مشکل ہے. یا میں ایک بات بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ لینتھی ہونا اور مشکل ہونا دیٹس ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ تھنگس. سیکنڈ ایئر MBBS از ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹس لینتھی. ہم لوگ چونکہ فرسٹ ایئر میں کافی ہمیں ایزی ہینڈ دیا ہوتا ہے اور تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹاپکس ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کے عادی ہوتے ہیں. جیسے ہم سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں ایک دم سے ہمارے کو پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، ہر طرف سے چیپٹرز بھی بہت زیادہ ہو گئے، پریکٹیکلز وغیرہ بھی آ گئے، تو بندے سے مینیج نہیں ہوتا. تو دیٹ لیک آف مینجمنٹ یوزلی برنگ اس آل ٹو کہ سیکنڈ ایئر MBBS بہت مشکل. سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر سے ڈفرینٹ ہے کچھ سینسز میں. فرسٹ آف آل فرسٹ ایئر کے بعد سیکنڈ ایئر میں جب آتے ہیں تو آپ کو کورس کا پتہ ہے، بکس کا پتہ ہے، لیکچرز کا پتہ ہے اور موسٹلی چیزیں آپ کو پتہ ہیں. تو آپ نے موسٹلی چیزوں کو پک کیا ہوتا ہے، اس لیے مارکس اٹین کرنا فرسٹ ایئر کی نسبت آسان ہے. لیکن سیکنڈ ایئر کا کورس فرسٹ ایئر سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے آپ نے تھوڑا اسمارٹ ورک کرنا ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ لینتھی کورس کی طرف جائیں گے تو پھر آپ مارکس لوز کر سکتے ہیں سب کچھ پڑھنے کے بعد. میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ اس طرح تھا نا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کورس بہت زیادہ ہے نا سیکنڈ ایئر کا، جو کہ صحیح بھی ہے، لیکن ٹائم بھی اس کے حوالے سے کافی ملتا ہے نا. تو اگر آپ اسٹارٹ سے اسٹڈی کرنے والے ہو تو آپ انجوائے کریں گے اس جرنی کو، اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ نیورو سائنسز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. چونکہ آلموسٹ آدھا سال تو گزر چکا ہے اور وی اونلی ہیو فیو منتھس لیفٹ ٹل پریپس. اس کے بعد ہماری پریپ اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو ابھی بھی اگر کسی نے پڑھنا اسٹارٹ نہیں کیا تو اٹس نیور ٹو لیٹ، کیونکہ کچھ لوگ پریپس میں بھی پڑھ کے کافی کمال کر جاتے ہیں. وی ہیو پیپل ان آور کلاس جنہوں نے خالی پریپس میں پڑھا ہے، جنہوں نے پورا سال نہیں پڑھا. ان کے بلاگس بھی شاید اتنے اچھے نمبر نہیں تھے، لیکن انہوں نے پریپس میں اچھے سے پڑھا ہے. میرے اپنے بلاک B میں 60 مارکس ہیں، بلاک E میں انٹرنل میں 56 مارکس ہیں، اور F میں میرے 90 مارکس ہیں، کیونکہ F میں پیپر بھی ایزی ہوتا ہے اور بندہ کور بھی کر لے. تو اگر آپ اسٹارٹ میں نہیں بھی کر سکے تو آپ پریپس بھی خالی پڑھ کر مارکس اٹین کر سکتے ہیں، لیکن اسمارٹ ورک کیجیے. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھنا اسٹارٹ نہیں کیا تو ڈی موٹیویٹ نہ ہو کہ ہم لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے، ہم لوگ پریپس میں کیسے کور کر لیں گے. یو کین اسٹل ڈو اٹ. ہاں، جن لوگوں نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے، سال کے ساتھ ساتھ پڑھا ہوتا ہے، ان لوگوں کو تھوڑی ایج تو ملتی ہے، بیکاز آبویسلی یہ لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ سال کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ میں پریپس میں تھوڑا پریشر کم ہوگا. میری پرسنل اوپینین یہ ہوگی کہ آپ اسٹارٹ سے پڑھیں، مطلب ڈے 1 سے پڑھیں تو فائدہ یہ ہوگا آپ کو نا کہ کورس آپ کا کور ہوتا جائے گا. تھوڑا بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ آسانی، وہ گین بھی آپ کو ہوتا ہے نا. اگر آخری میں پڑھ بھی لے بندہ، کورس تو کور ہو جاتا ہے لیکن اتنا گین نہیں ہوتا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اسٹارٹ سے پڑھے اور اس طرح کرے نا کہ روٹین آپ کی جو بھی ہو وہ فالو کرے. انیشیلی اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہے تو کم ٹائم دے، پھر تھوڑا تھوڑا اسے بڑھائے، لیکن ایسی روٹین رکھے جس سے آپ کورس کور کر سکے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے سال کے شروع سے ہی پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ تھا کہ پھر فائنل جب میری پریپس ہوئی تھی تو میری تیاری بہت زیادہ ٹھیک تھی نا، کہ بلاگس میں میرے تقریباً سارے پاس تھے. تو اس وجہ سے پھر جو فائنل میری انٹرنل اسسمنٹ تھی وہ بھی کافی اچھی کی تھی، اور اس کے علاوہ پھر اس وجہ سے مجھے باقی اسٹوڈنٹ سے کافی زیادہ ایج ہوا تھا اس بات پہ. ایگزامس میں آپ ایک ساتھ پڑھائی اسٹارٹ کرتے ہو تو اٹس اے برڈن فار یو. تو آئی ریکمینڈ کہ آپ
पूरा साल ही थोड़ा थोड़ा आप करके पढ़ते रहें कि एट लीस्ट आपका कोर्स एक बार कवर हो प्रॉफ से पहले। मेरा हमेशा यही गोल होता है कि प्रॉफ से पहले एक बार मैंने अपना सिलेबस गो थ्रू किया हो। इससे आप जब प्रॉफ में अपनी बुक्स खोलते हो तो आपको न्यू नहीं लगती हैं, आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती है कि यू हैव टू मतलब रश ओवर इट और मतलब सिर्फ रोट लर्निंग करनी है उसकी। डेली आप ज़्यादा नहीं तो 4 to 5 आवर्स यू मस्ट गिव टू योर स्टडीज़ डेली। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप आई गारंटी यू के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और प्रॉफ में तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। आई ऑलवेज़ मेक अ टाइम टेबल। मैक्सिमम आपको अगर आप नहीं भी कर सकते मतलब मिनिमम तो आपको 10 आवर्स तो पढ़ना चाहिए प्रॉफ में अ डे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा आपका पोटेंशियल जितना है आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हर एक का डिफरेंट होता है, तो आपको उस हिसाब से अपना सिलेबस प्लान करना चाहिए और रिवीजन मस्ट करनी चाहिए। बुक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर में की गाइडेंस दी थी, तो उसमें मैंने बुक्स की रिकमेंडेशन दी थी कि हम लोग कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव द सेम सब्जेक्ट्स हियर। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखी है तो आप उसी मेथड को, उसी बुक्स वाले मेथड को आप इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉक टी में हमारे पास मेन जो सब्जेक्ट होता है ना वो न्यूरो साइंसेज होती है ना। तो पहले न्यूरो साइंसेज के लिए तो लोग फोकस करते हैं वीडियोस पर। तो डॉक्टर नजीब की वीडियोस वो आपकी न्यूरो को कवर कर लेगी, तकरीबन फिजियोलॉजी प्लस एनाटमी। तो इसके साथ आप इस तरह कर लेना कि बुक्स में न्यूरो साइंसेज के लिए एनाटमी में आप स्मेल रख लें और फिजियोलॉजी में आप फिर गाइडलाइन फॉलो कर लें। तो फ़ायदा ये होगा ना कि आप अगर वीडियो देखते हैं और इसके साथ बुक फॉलो करते हैं तो कंसेप्ट आपका बनता जाएगा और थोड़ा सा नोट करते जाए ताकि लिंक बनता जाए ना। और जब एक बार आप उसको कवर कर ले तो फिर बुक पर ही फोकस करें। इस तरह ना हो कि फिर वीडियोस पर लगे रहें ना, सिर्फ उससे अपना एक बैकग्राउंड बना ले और फोकस मेन बुक पर रखें। स्पेसिफिक अगर हम आ जाएँ मुख्तलिफ बुक्स की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी से स्टार्ट करें। तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ मैंने किस तरह किया था, उसमें एनाटमी मैंने जो है हेड एंड नेक डायरेक्टली बुक से रीड की थी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है आदिल बंदूक की वीडियोस भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है बुक रीड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बुक्स को रीड करने में एडवांटेज ये होता है कि मोस्टली जब पेपर होता है तब आपको बुक की लाइन्स आती हैं, और जिसने बुक की लाइन्स पढ़ी हैं और बुक को कवर किया है, बुक की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है और उससे एमसी को सॉल्व करना ईजी है। न्यूरो में मैंने ऐसा किया था कि मैंने नजीब के लेक्चर्स दिए थे बिकॉज आई रियली लाइक हिज टीचिंग स्टाइल, क्योंकि आई डोंट नो ही हैज़ दिस थिंग वेयर ही एक्सप्लेन्स थिंग्स रियली वेल। और मैंने एक दफ़ा किया था इंटर्न्स में, आई डिड न्यूरो एनाटमी एंड प्रॉफ्स में 6 महीने बाद आई रिवाइज्ड इट ऑल इन अ डे। सो आई फील लाइक नजीब इज़ रियली गुड फॉर दिस। और मैंने नजीब के नोट्स बनाए एंड देन आई जस्ट वेंट टू स्नेल, और जो पॉइंट मुझे मिसिंग लगा और क्लिनिकल स्पेशली वो मैंने ऐड करके दिया। So it was really easy for me to revise in the end with Najib, तो मैं यही स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूँगी for most of the people। न्यूरो एनाटमी की बात करें, न्यूरो एनाटमी जो है मैंने नजीब के लेक्चर्स लिए थे, नजीब के नोट्स से, और नजीब के नोट्स से मोस्टली चीज़ें कवर होती हैं। मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें टारगेट किया जाता है असेंडिंग ट्रैक्स को, और स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक है जो कि नजीब के नोट्स में कवर नहीं किया बुक से। और बाकी नजीब के नोट्स कुछ जगहों पर डेफिशिएंट है, उसके लिए आप बुक को कंसल्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सेरिब्रम के 2 चैप्टर्स हैं, और इस तरह के कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आप स्टार्ट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। I went to Snell's neuroanatomy for neuroanatomy and Gray's anatomy for head and neck. Generally head and neck के MCQs जो हैं वो कम होते हैं, तो students skip head and neck, but I don't recommend that. Only 17 MCQs होते हैं, लेकिन you guys need to cover head and neck very प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से आपको करनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में ENT एंड आई में यू नीड दैट एनाटमी। और उसके लिए आई यूज्ड डॉक्टर आदिल बंदूक एंड फॉर सम लेक्चर्स आई वेंट टू एनाटमी जोन। ब्लॉक टी में हमारे पास मेन जो सब्जेक्ट होता है ना वो न्यूरो साइंसेज होती है ना। तो पहले न्यूरो साइंसेज के लिए तो लोग फोकस करते हैं वीडियोस पर। तो डॉक्टर नजीब की वीडियोस वो आपकी न्यूरो को कवर कर लेगी, तकरीबन फिजियोलॉजी प्लस एनाटमी। तो इसके साथ आप इस तरह कर लेना कि बुक्स में न्यूरो साइंसेज के लिए एनाटमी में आप स्मेल रख लें और फिजियोलॉजी में आप फिर गाइडलाइन फॉलो कर लें। तो फ़ायदा ये होगा ना कि आप अगर वीडियो देखते हैं और इसके साथ बुक फॉलो करते हैं तो कंसेप्ट आपका बनता जाएगा और थोड़ा सा नोट करते जाए ताकि लिंक बनता जाए ना। और जब एक बार आप उसको कवर कर ले तो फिर बुक पर ही फोकस करें। इस तरह ना हो कि फिर वीडियोस पर लगे रहें ना, सिर्फ उससे अपना एक बैकग्राउंड बना ले और फोकस मेन बुक पर रखें। तो हेड एंड नेक में मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि ब्रेक इट डाउन इनटू 1 or 2 टॉपिक्स हर दिन के लिए। किसी मेन और कोई आप टॉपिक रख लें अपने उन दिनों के लिए, और साथ में हेड एंड नेक के 1-2 टॉपिक्स रखें। 1-2 टॉपिक्स
दूसरे एक दिन वो किया, दूसरे दिन वो रिवाइज़ किया. और हेड एंड नेक में आई फील लाइक कंबाइंड स्टडी इज़ रियली गुड फॉर दैट, क्योंकि उसमें इट रियली हेल्प्स यू रिवाइज. जो आपकी डेफिशिएंसीज रहती हैं दूसरों से पूरी होती हैं. मैंने 2-3 लोगों के साथ हेड एंड नेक की थी. बाय द एंड इट डिडंट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज. तो हेड एंड नेक इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे आपको कंबाइंड स्टडी बहुत मतलब फ़ायदा देगी. ब्लॉक ई का हमारा इस तरह है ना कि उसमें बायोकेम वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी लेंथी भी है, और लेंथी इतना नहीं है लेकिन बोरिंग लगता है ना लोगों को. तो फोकस इस तरह फोकस करें ना कि जिस टाइम आप अटेंशन आपकी अच्छी हो ना, आप मूड में हो, तो उस टाइम वो सेगमेंट उसके लिए दिन का रखें. कुछ स्टूडेंट्स आपको कहेंगे कि पंकजा फॉलो कर ले, कुछ कहेंगे सत्या. तो मसला ये नहीं है कि आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं, मसला ये कि कितना आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं. जितना एक बंदा उसको रिवाइज करेगा, जितना अच्छी देखेगा वो बुक, तो उतना ही वो उससे फ़ायदा ले सकेगा. एक बुक पर फोकस कर ले स्टार्ट से. मैंने खुद फर्स्ट ईयर में भी सत्या फॉलो की थी, सेकंड ईयर में भी, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे MCQs भी तकरीबन सारे कवर होते हैं. जो मैंने अच्छे नहीं देखे वो कवर नहीं होते, OSP भी कवर हो जाती है. तो एक बुक को रख लें और इस कंफ्यूजन में ना पड़े कि ये कवर कर लेगी ये नहीं करेगी ना. तो एक बुक को पर फोकस करें और रिवीजन पर ज़्यादा टाइम उस पर दें. स्पेशली हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म्स है ना, वो रिवीजन से ही आपको उसको समझ सकते हैं. कि ब्लॉक ई में मेटाबॉलिज्म मोस्टली लोग कहेंगे आप 10 टॉपिक से कर लें, लेकिन मेटाबॉलिज्म को आपने सत्या से, पंकज से, जो भी बुक आप रेफरेंस बुक रखते हैं उससे आपने कवर करना है. क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है इसके MCQs हमारी बार भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी आए थे और 10 टॉपिक से कवर नहीं हुए. For neurophysiology, again, when you take Ninja Nerd and Dr. Najeeb, they cover both anatomy and physiology. So I recommend that you take either Ninja Nerd or Dr. Najeeb. I took both. I took Ninja Nerd for revision, make notes for them, and then go to Guyton. And for special senses and special physiology of neuro, I opted for Ninja Nerd. This is better than other lectures. फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी मैंने बुक से रीड किया डायरेक्टली, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो बेस्ट वे जो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स भी लेंगे और बुक की तरफ भी जाएंगे तो इट्स टू मच टू हैंडल. फिजियोलॉजी के चैप्टर ज़्यादा हैं, कोर्स ज़्यादा है, इसलिए आपने फिजियोलॉजी में ऐसा करना है. अगर मुझे मेरी बात माने तो आप बुक रीड करें, बहुत ईजी लिखी हुई है गाइटन में वैसे भी स्टोरीज लिखी हुई हैं ज़्यादातर. बुक रीड करें, गूगल ऑन रखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती आप गूगल पे सर्च कर लें, ताकि आप कोर्स भी कवर कर लें और स्मार्टली वर्क करें. एम्ब्रियो जो है वो तो हमारे पास लैंग्वेज से कवर हो जाती है. उसमें नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल है, तो उसके लिए अगर वीडियोस आपको देखना चाहे तो उसके लिए मैंने खुद नहीं देखी. अगर आप किसी सीनियर से मशवरा लेना चाहे तो वो आपको गाइड कर लेंगे इस हवाले से. और हिस्टोलॉजी के लिए डाइफोर भी बेस्ट है, मतलब कोर्स कवर हो जाता है तकरीबन उससे. MCQs और OSP दोनों वो कवर कर लेता है ना. एम्ब्रियो और हिस्टो, ये चीज़ें हम मोस्टली निगलेक्ट करते हैं क्योंकि इनके मार्क्स कम होते हैं और शॉर्ट बुक से करते हैं. लेकिन जिस बंदे ने एम्ब्रियो और हिस्टो पर ग्रिप पक्की कर ली, वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आराम से कवर कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिस्टो और एम्ब्रियो करनी है और उसके बाद बाकी मेन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना. सेकेंड ईयर MBBS ऐसा ईयर होता है जिसमें सबकी एनर्जी काफ़ी पीक पे होती है. लाइक फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी टाइम हमें रैगिंग से निकलने में, इन चीज़ों में निकलने में, कंफर्टेबल होने में, दोस्तियाँ बनाने में, इन चीज़ों में गुजर जाता है. तो सेकेंड ईयर तक आके अच्छे खासे दोस्त भी बन चुके होते हैं और कॉलेज को भी आप समझ चुके होते हैं. सो यू पीपल वाइब अ लॉट. तो सेकेंड ईयर वो वही टाइम होता है ना कि जिसमें अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज़ करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे. लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को आगे पीछे बाकी कामों में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा चले जाएंगे तो फिर आपसे स्टडीज़ रह जाएंगी. तो आफ्टर ऑल आपने ये सोच के रखना है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बेशक पार्टिसिपेट करें, गेम्स में पार्टिसिपेट करें, बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, लेकिन बैक इन द माइंड आपने ये रखना है कि हम यहाँ डॉक्टर्स बनने आए हैं. लाइक बाय द एंड ऑफ 5 years आपके साथ जो एक चीज़ रह जाएगी वो यही होगा कि आपने पढ़ा क्या था, आपकी नॉलेज क्या है. लाइफ जो है वो बैलेंस रखनी पड़ती है, मतलब एक बैलेंस आपने रखना पड़ता है. मैंने सेकंड ईयर में खुद CRship भी की है, अभी भी CR हूँ अपनी क्लास का. तो इस तरह कर लेना कि एक बैलेंस बना के रखें. स्टडी का टाइम हो उसमें स्टडी करें, एक टाइम CRship के लिए भी रखें. कॉलेज में आपके पास टाइम हो तो वो कर लिया करें, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो रख लिया करें. क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है कि आप पढ़ लेंगे इस टाइम तो उससे आप गेन कर लेंगे ना, इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट भी आपकी होनी चाहिए. तो वो ज़रूर इंटरेक्शंस वो कर लिया करें और सोशल एक्टिविटीज़ उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया करें. अपने इन डेज़ को आप ज़ाया ना करें. बेशक आप बाकी चीज़ें करें लेकिन साथ साथ आप पढ़ें भी.
हर एक चीज़ प्रेप्स के लेना छोड़ दें, बिकॉज आई नो द प्रेशर हम लोगों ने डील किया उसके साथ। हम लोग पूरा साल काफ़ी मस्ती करते रहे, हर एक चीज़ करते रहे। तो सेकंड ईयर MBBS में लाइक एक रिकॉर्ड सप्लीज आई हैं लोगों की, स्पेशली पेपर ही में। इट्स नॉट दैट ईजी जिस तरह आप लोग को लगता है। लोग कहते हैं कि MU का पेपर बड़ा आसान आता है, आप प्री प्रॉफ कर लेंगे आपको आ जाएगा, आप 10 डॉक्टर्स देख लेंगे आपको आ जाएगा। तो इट्स जस्ट लक। कभी कभी आपको 20-30 MCQs भी मिल जाते हैं प्री प्रॉफ से, और कभी ऐसा होता है कि कोई एक MCQs भी नहीं होता। लाइक हमारे टाइम पे जब ब्लॉक ई का पेपर हम देने गए थे तो इट वॉज लेस ऑफ ब्लॉक ई पेपर एंड मोर ऑफ लाइक स्टेप 1 पेपर। और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं उनकी, एंड दैट वाज ऑल क्लिनिकल। 10 डॉक्टर्स हमने भी पढ़ी हुई थी, प्री प्रॉफ हमने भी देखे हुए थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो एक सेट बैक मिल गया था। मशवरा ये है इसको सीरियस लेना है, लाइक नॉट अ जोक। क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने टेम्पो नहीं बनाया अपना ना, तो थर्ड ईयर इज़ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। बाकी इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है सेकंड ईयर। कुछ लोग तो सारा टाइम डर में गुजर जाते हैं उनका कि बस हमसे नहीं होगा, और बहुत लेंथी है, और बायोकेमिस्ट्री ऐसी और बाकी ऐसी है। आप अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी सीनियर्स थे, उन्होंने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ना ही है। वो भी पास करके गए, हम भी पास करके गए, आप लोग भी इवेंचुअली पास कर ही लेंगे। लेकिन मेन मकसद ये है कि उससे आप लोगों ने गेन कितना करना है। खाली पेपर पास करना मकसद नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने सीखना है। नेक्स्ट ईयर जब आप लोग वार्ड्स जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों से टीचर्स पूछेंगे, वो आपको उस वक्त सिखाएंगे नहीं, तो जब आस्क यू कि आप लोगों ने तो लास्ट ये चीज़ पढ़ी है बताओ हमें, तो उस वक्त सब ब्लैंक खड़े होते हैं क्योंकि पढ़ा नहीं होता, किसी ने शॉर्ट बुक्स यूज़ की। तो जब रियल लाइफ में पेशेंट के सामने जाएंगे तो ना आपको शॉर्ट बुक्स काम आएंगी, ना आपको मौज मस्ती काम आएगी, फिर उस वक्त आपको एक ही चीज़ काम आएगी कि आपने पढ़ा क्या था बुक में। बाकी इस लेवल तक आके तकरीबन हर एक बंदे को इस चीज़ का पता लग जाता है कि उसने कौन सा मेथड फॉलो करना है, किस तरह की रूटीन रखनी है, कौन सी बुक्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ों की समझ हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि हम लोग टॉपर से पूछ के और बाकियों से पूछ के हम लोग एक छोटी सी वीडियो बना लें, जिसमें अगर जूनियर्स को उससे कोई हेल्प मिल सकती है तो इट वुड बी बेटर फॉर देम। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड ईयर, एंड आई प्रे फॉर यू ऑल कि आप लोग अच्छे नंबर लेके पास हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।